सुन लिया बच्चों? यस सर। यस सर। ग्रुप पे मैसेज डाल दो, अपने ग्रुप पे डाल दो। No recording will be given and all the latecomers are not now allowed. All are in waiting room. ऐसा कुछ मैसेज डाल दो। लेट अपने मर्जी के मालिक बन गए। चलो, let's continue. Stop writing. अब यहाँ तक हो गया? यस सर। Next see देखो इधर। If we say line 1 की equation है a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, and let's say the point of intersection is P, which is, let's say, usually point of intersection को किससे denote करें अपन? Alpha beta. Let's say alpha beta से denote करें। You remember quadratic similar equation इतनी अच्छी तरह पढ़ा था हमने, all of you? यस सर। यस सर। क्या था similar equation? मुझे याद करो। So it's like when both of the roots they are substituted in the quadratic equation. ऐसे दो equation है और एक root में एक equation में एक root दूसरे। You are talking about substituting in the quadratic, whereas when I told you similar equations means कि वो equation होगी उसके through quadratic guess करना है, याद कर। हाँ सर वही। So like let's say if you have similar equation like this, a1 alpha square plus b1 alpha plus c1 equal to 0, and we have similar equation a2 beta square plus b1 beta plus c1 equal to 0. So based on these two equations, we are able to judge कि alpha की जगह बस x रख दो, agree करो? Yes sir. Yes. Quadratic जिसके roots alpha और beta है, correct ना? हाँ सर। Yes sir. Here also see, if both the lines are having this point of intersection, then both lines will pass through that, correct? Yes sir. So therefore, the first equation that we have is a1 alpha plus b1 beta plus c1 equal to 0, and a2 alpha plus b2 beta plus c2 equal to 0. Is this agree all of you? Yes sir. Actually, I can talk about infinite lines. सबका सब वही relation होगा देखना. a1 alpha plus b1 beta plus c1 equal to 0. a2 alpha plus b2 beta plus c2 equal to 0. So अगर मुझे अब किसी तीसरे लाइन की बात करनी है, like let's say L3 लाइन, तो अगर मैं बोलूं कि a1 alpha plus b1 beta लिखना है कि let's say मैं फर्स्ट लाइन ऐसा कर सकता हूँ, first line plus let's say twice of second line equal to 0 करूँगा। देखो क्या है, a1 alpha plus b1 beta plus c1 plus twice of a1 alpha plus b1 beta plus c1 equal to 0. Now talk me about this line. लाइन की बात करते हैं तो अल्फा बीटा हटा ही देते हैं, एक बार x और y के टर्म से बात करते हैं। a1x plus b1y plus c1 plus 2 times. Talk me about this. Will this be a straight line? पहली बात, L1 plus 2L2 equal to 0. हाँ जल्दी बोलो, एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? यस सर। अगर स्ट्रेट लाइन देखना नहीं आता तो चंदू को पानी में जाना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? यस सर। स्ट्रेट लाइन मतलब x और y की टर्म है ना, डिग्री 1 की टर्म से ना? यस। This is a straight line. Now further tell me about the straight line. Is this straight line passing through alpha and beta? Yes sir. यस सर। Yes sir. Come on everyone. Yes sir. कैसे चेक किया कि वो अल्फा बीटा से पास करा है? बोलो। L1 and L2 0 हो जाएंगे। अल्फा और बीटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना बस? Yes or no? Yes sir. Yes. यस सर। अगर अल्फा बीटा से पास करे तो अल्फा बीटा को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर अल्फा बीटा रखूंगा तो इतना पार्ट कितना हो गया? Even alpha Zero. plus b. फिर ये इतना पार्ट भी कितना हो गया? 0. So can I say this straight line is passing through alpha comma beta? Yes sir.
Yes, sir. Yes, अल्फा sir. बीटा से पास कर रही है तो डेफिनेटली इट विल बिलोंग टू द फैमिली और नॉट? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिलोंग टू दैट फैमिली ओनली. व्हाट अबाउट 2? 2 का कोई रूल आया है या फिर मैं 2 की जगह 12 भी कर देता तो भी सेम ही चीज बोल देता हूं? जल्दी बोलो. Yes, सेम sir. होता. 12 की जगह 12/5 करते तो? Sir, same one. सेम ही रहता. Same सेम होता. रहता सर. So can I say all the lines belonging to this family का तुम्हें फॉर्म दिख गया? Come on. All the Yes, lines sir. belonging to this family is of the sort what? इसको क्या बोलूंगा मैं? Come on. L1. हाँ है ना? Yes, sir. All the Yes. lines belonging to which family? All the lines belonging to the intersection of L1 and L2 family. Can I say like Yes that? sir. Yes, sir. Repeat करो क्या बोला? All the lines. All the lines in the family of intersection of L1 and The L2. intersection of L1 and L2 will be given by L1 plus ये क्या है? कोई भी Lambda कांस्टेंट L2. होता है, कोई भी स्केलर हो सकता है ना? Yes, sir. Yes, sir. प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0. क्या ये सबको क्लियर है? Yes, Yes. sir. नीचे लाइन लिख देंगे, फटाफट कॉपी कर रहे हैं. फैमिली ऑफ लाइन वो लास्ट में लिखेंगे. चलो नचिकेत, दिव्यांशी, अभी मैंने 18 जनों को वेटिंग से अलाउड किया है. नेक्स्ट टाइम ना तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, मैं वेटिंग में भी डाल दूंगा, ना नोट्स भेजूंगा. सुना नचिकेत, अक्षत पंचाल, दिव्यांशी, हमारे मर्जी के मालिक बन रहे हो ना. ये घर का राज नहीं है कि अपनी मर्जी के हिसाब से ऑन किया और आ गए. सुना क्या? Sorry sir. Sorry sir. Sorry, sir. इतना इंडिसिप्लिन होता है जब ये टॉपिक वापस पढ़ाऊंगा क्या मैं इसका? इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस करोगे समझ नहीं आएंगे, फिर आ जाओगे उठ के मुंह उठा के तो पूछने के लिए. पहले भी डांटा था मैंने कि लेट मत आओ, अपने मर्जी के हिसाब से आ जाते हो. लेक्चर बस ऑन करा आगे. 7:25 पे you should have joined in. 5 मिनट नोट्स रिवाइज करो so that you will be ready. नोट्स वाली सब कॉपी कर लेना. नो रिकॉर्डिंग, नो नोट्स विल बी गिवन. कॉपी हो गया एवरीवन? Yes. हाँ बच्चों, कॉपी हो गया. Yes, sir. जो लेट है हमसे पूछ ही रहा मैं. चलो देखो पॉइंट्स टू नोट. फर्स्ट पॉइंट, points to note.
First point. Family of lines passing through points of intersection. Points nahi, point of intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0 is given by what relation? बच्चों loud voice में बोलो. Is given by plus lambda L2 L1 plus lambda L2 is 0. equal to 0. plus lambda L2 equal to 0. Where lambda is any scalar quantity. Any scalar मतलब any real number लिख दो यार. तुम scalar मत लिखो, confuse हो रहे. Any real number. डायग्राम बना दो एक छोटा सा. कैसा डायग्राम बनाऊंगा तुम खुद ही जज करो. बताओ क्या डायग्राम बनाऊंगा. डायग्राम में क्या बनाऊंगा. तो L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट और फिर बाकी लाइंस के इंटरसेक्शन थ्रू दैट. बिल्कुल सर. दो लाइन बनाऊंगा L1 और L2 उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेंशन करूंगा and then I'll mention any other line is belonging to this family. Example लिख दूं. L1 plus 5 L2, yes, it also belongs to this family. L1 minus 7 by 6 L2, yes, also it belongs to the family. Can I say lambda can be 0 also बच्चों? Yes, sir. सर वो तो L1 ही हो जाएगा फिर. L1 ही हो जाएगा. तो it is a family member ना. हाँ sir. Yes. L2 कैसा आएगा. L2 क्या रखूं lambda ताकि L2 आ जाएगा. सो L1 इक्वल टू 0 और डिवाइड बाय लैम्डा करो. L1 equal to 0 कैसे रखेंगे. lambda को रखेंगे ना. हाँ राइट. lambda रखना है ताकि L2 आ जाए. कैसा आएगा. lambda से डिवाइड करो और infinity रख दो. जल्दी देखो चेक करो. हाँ sir, correct. क्या बोला मैंने. वापस रिपीट करो. लैम्डा से डिवाइड करो और infinity डिवाइड Divide बाय करो इंफिनिटी रख. और फिर infinity रख दो. वो एक्सट्रीम केस है. हो गया सबका. Yes, sir. Next, point of intersection of the family L1 plus lambda L2 equal to 0 can be found. बहुत बार होगा तुम्हें इंडिविजुअल मेंबर नहीं देंगे. L1 L2 नहीं देंगे. They will give you a combined equation of this sort. L1 plus lambda L2 फॉर्म में इक्वेशन देंगे. तो उससे भी अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं बच्चों. यस. कैसे करेंगे उसको पहले इस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा एंड देन सिंपली किसको सॉल्व कर लोगे. दो लाइंस को सॉल्व कर लोगे ना. Yes. Yes. इवन दो इट इज वेरी ऑब्वियस चीज बोल रहा हूं मैं बट इस पे बहुत क्वेश्चंस बनाऊंगा अभी. सॉल्विंग L1 and L2 equal to 0 टॉपिकल. सर एसीबी सर ने बताया था कि अभी 2 हफ्ते में ऑफलाइन भी स्टार्ट होने वाले हैं. ठीक है उन्होंने बताया तो उनसे पूछ मुझसे क्यों पूछ रहा है. तो मैं पूछ रहा हूँ क्या सर अगर ये कंफर्म्ड है कि नहीं. कंफर्म हुआ तुम्हें आ जाएगा पता लग जाएगा. Done everyone? Can we start questions? Yes, sir. We'll start writing first question. I'm changing the page. हो गया ना सबका? Yes, sir.
Consider the line 1, line 2. सारे क्वेश्चंस तो तुम फैमिली के बिना भी कर सकते हो, एग्रीड है ना? 2 पॉइंट फॉर्म से ही कर सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल सकते हो, सॉल्व करके ओके कर लोगे, बट ये सब फैमिली ऑफ लाइंस के कांसेप्ट से करना है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सबने सुना क्या बोला मैंने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कैसे स्टार्ट कर रहे हो बताओ जल्दी समझो। क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया होगा, फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लिया होगा। Any family of line passing through L1 and L2 is given by L1 plus lambda L2. L1 plus lambda L2. मतलब बेसिकली सिर्फ लैम्डा ही निकालना है, करेक्ट ना? हाँ सर। इसमें डी पार्ट
तो अभी तक तुमने कॉपी तो नहीं किया होगा ना? नहीं ना? No, sir. फर्स्ट पार्ट के लिए लैम्डा कितना है बच्चा, जल्दी बताओ। सर लैम्डा -3 है। करेक्ट। सर यस, L1 L2 को टू इक्वेशन टू वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है, बट अभी मैंने क्या बोला, नहीं करना है, क्योंकि फैमिली का फंडा सीखना है। ओके, Okay, sir. दिस कैन बी डन बाय 2 पॉइंट फॉर्म। 2 लाइन को सॉल्व करके पॉइंट निकाल के कर लोगे क्वेश्चन, बट उससे अभी नहीं करना है। सर आप बी पार्ट का आंसर चेक कर सकते हो। चलो फर्स्ट पार्ट और बी पार्ट में, फर्स्ट पार्ट तो निपटा दूं एवरीवन, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे, पास करा दो ओरिजिन से, 0,0 सेटिस्फाई करेगा। 6 + 2 लैम्डा इज 0, लैम्डा इज इक्वल टू कितना, -3। लैम्डा को -3 रख के आंसर निकाल लो। यहाँ पे -3x कैंसिल, 4y - 3y बाय 6, आंसर हो जाएगा सर, y 0 आता है। y = 0 आंसर। ये y = 0 x एक्सिस भी मेंबर ऑफ द फैमिली हो सकता है ना? यस सर। Yes. कैसे हो सकता है? अगर दो लाइंस x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही हो तो फिर तो x एक्सिस भी मेंबर ऑफ द फैमिली होगा ना? Yes. है हमारे साथ। सेकंड पार्ट जल्दी से करो। ओके प्रकाश, सर आप सी पार्ट का चेक कर सकते हो। चेक करते हैं। चलो याद नहीं है। देखना पड़ेगा मुझे। इसका आंसर चेक कर सकते जाओ, एक पार्ट के लिए लैम्डा सही नहीं लग रहा है जिस बच्चे ने दिया।
सेकंड पार्ट हो गया बच्चों? Yes, sir. सेकंड पार्ट का लैम्डा क्या है? चिल्लाओ सब बच्चों। Sir, -10/3. -10 पैरेलल टू दिस क्या फंडा यूज करेंगे बच्चों? कि एक मेंबर है जो इसके फैमिली के, जो मेंबर ऑफ द फैमिली है जो इसके पैरेलल है, व्हाट विल वी यूज? Sir, gradient. जल्दी से, और दूसरे बच्चे बोलो ग्रेडियंट के अलावा और क्या बेटर वर्ड है? स्लोप। बस स्लोप इक्वेट करेंगे हाफ के। तो स्लोप कितना हो जाएगा? तो देख के बताओ मुझे लैम्डा के टर्म्स में। वैसे इसको कंबाइन कर दूं, 3 प्लस लैम्डा इनटू x प्लस 4 प्लस लैम्डा इनटू y प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा। अब तो बता दो स्लोप कितना है? कौन से फॉर्म में आ गई लाइन? एवरीवन, कौन से फॉर्म में आ गई लाइन? जनरल फॉर्म। General. Form उसमें स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस A by B. A by B. तो क्लियर? Yes, sir. That is equals to half. So कितना हो गया? -6 minus 2 lambda equals to 4 plus lambda. सही लिखा है मैंने? Yes, sir. So 3 lambda is equals to -10. Lambda equal to -10/3. अब lambda को -10/3 रखोगे तो आंसर आएगा। रखना पड़ेगा, उसमें क्या है? कितना हो गया? 3 minus 10/3 that is -x/3. 4 minus 10/3 that is 12 minus 2/3. 6 minus 20 minus 2/3, सही? Yes. X minus 2y plus 2 equal to 0 is the B part answer. वापस पूछ रहा हूँ, क्या ये क्वेश्चन B part फैमिली के बिना कर सकते हो? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल हाँ, and you are more comfortable in that. I know that. But comfortable हटाना है, यहाँ comfortable बनाना है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि in the family of circles topic तब नहीं कर पाओगे ऐसे point of intersection निकाल। Is that clear? Yes, sir. थोड़ा सा फोर्सफुली कर रहे हैं बस। सी पार्ट करो, सी पार्ट का कॉपी कर लेना, मैं नेक्स्ट पेज करूंगा अभी। सेकंड पार्ट का कॉपी हो गया ना, मैं रब कर रहा हूँ। Yes, sir. सी पार्ट चलो, हो गया सी पार्ट बच्चों? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir, आंसर ही भेज रहा है. जल्दी करो, जल्दी करो। Area intersected by the line with the coordinate axis. ये फैमिली है, मान लो ये सब लाइंस ऐसे कट कर रही है, फिर तुमने फैमिली बनाई है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बना रहा हूँ कि मान लो ये दो लाइंस ऐसी है, फिर तुमने अब मेंबर ऑफ द फैमिली को ग्रीन लाइन से बनाया, ये रहा। तो ये एरिया की बात कर रहा है, सबको पता है, वो ये भी एरिया का हमने क्वेश्चन करे हैं उसके, करेक्ट ना? यस,
पॉइंट ए कैसे निकलेगा, किसको जीरो पुट करके, जल्दी बोलो। y0 सर। y को जीरो रखूंगा तो x कितना आ जाएगा बच्चों, 3x plus 6 plus lambda x plus 2 lambda equal to 0। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, माइनस ऑफ 2 lambda plus 6 divided by 3 plus lambda। पॉइंट b के लिए x को जीरो पुट करूंगा, 4y plus 6 plus lambda y plus 2 equal to 0। y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, या बिल्कुल सही, 4 plus lambda। और area का क्या एक्सप्रेशन होगा, हाफ x coordinate of this, y coordinate of this, correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. वो भी मॉडल्स पर रखना चाहिए। So, तो ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएंगे। yes, sir. So, Gopal, क्या बोल रहा है वो, सर हम लोग क्वाड्रेटिक बनाने से बेटर, क्योंकि हम लोग को एरिया पता है और हम लोग को मतलब एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता है, तो फिर हम लोग वाई एक्सिस के 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, +10 और -10। चुप रहेगा। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता है, मतलब कैसे पता है तेरे को x एक्सिस पे इंटरसेप्ट? सर क्योंकि एक पॉइंट है -2,0 और अगर उससे पास हो रहा है तो एक इंटरसेप्ट वो तो ऑटोमेटिकली हो गया ना। वो तो यहीं से एक्चुअली कैंसिल हो रहा है ना। अच्छा हाँ सर, हाँ वही। ये -2 कॉमन लूंगा तो क्या कैंसिल हो रहा है, सबको दिख रहा है ना बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. हाँ है ना एवरीवन? यस Yes, sir. तो मैंने सिंपलीफाई नहीं किया था, वो यहाँ सिंपलीफाई कर रहा था। ठीक है, वैसे ही कर लो, सेम ही चीज है जो तू बोल रहा है बच्चे। इसको सॉल्व करते कितना आता है बताएगा? लैम्डा सर -3 और -4.25। -4.25 मतलब 9.5, 19/2। हाँ सर, नहीं सर, -4.25, 4.25 -17/4। -17/4। लैम्डा को रखेंगे, आंसर आ जाएगा, बट डोंट वेस्ट आवर टाइम इन नाउ डूइंग दैट, बस रफ हो गया। आगे बढ़े। Yes, sir. को माइनस रखेंगे तो 0 आ जाएगा ना आंसर। कौन बोला? सर नचिकेत, क्या बोला? वो अगर -3 रखा तो 0 आ जाएगा ना एरिया में। जीरो हो जाएगा मतलब क्या होगा? हो जाएगा ना -3 + 3। सर एरिया में एकदम नीचे। तब वो बोल रहे हैं कि वो अनडिफाइंड हो जाएगा अगर लैम्डा 3 -3 निकला तो। नहीं होगा, चल लैम्डा -3 में एरिया अनडिफाइंड कैसे होगा, डिनोमिनेटर में तो ना है। सर वो ऊपर की बात कर रहा है सर, जो एक्स कोऑर्डिनेट है सबसे ऊपर वाला, उसमें डिनोमिनेटर में 3 + लैम्डा। अब तो चुपचाप बैठना होगा, वो बोल रहा है उसको बोलने दो। पहली बात वो यहाँ पे बोल रहा है, ऊपर नहीं बोल रहा है, यहीं पे बोल रहा है ना नचिकेत? यस सर। लैम्डा -3 के लिए नहीं, सही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सर और एक ही वेरिएबल है, लैम्डा लैम्डा का स्क्वायर भी नहीं है ना, अगर आप कम भी करोगे। वापस कौन बोला ये? सर नचिकेत ही बोल रहा हूँ। एक बार थोड़ा सा आराम से बोल। सर तो जो मैं बोल रहा हूँ उसके बाद मेरे को कंप्लीट करने दे, बट पहली बात एक वेरिएबल नहीं, 2 वेरिएबल, ये मॉड है नालायक। और 2 आते नहीं है, तुमने ढंग से सॉल्व किया इसको? क्या आता है सॉल्व करते हैं? mod lambda plus 3 equals to 5 times mod lambda plus 4, ऐसे कुछ है ना? हाँ सर। जल्दी सॉल्व करके बताओ, 2 आएंगे, भले लैम्डा -3 तो रिजेक्ट ही करना पड़ेगा वैसे भी, अगर आएगा तो भी। लैम्डा -3 मतलब याद करो, लैम्डा -3 तो अभी आया था ना किसी पार्ट में, ए पार्ट या बी पार्ट में आया था।
पहले मुझे इसका आंसर बताओ सही क्या है, जल्दी बताओ। बोलो बच्चों, यही आ रहा है। -3 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कैसे बोल रहे थे? लैम्डा -3 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ज़मीन भाई जल्दी बताओ यार, ये मॉड तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्या? -23/6 आ रहा है। दो आंसर आएंगे ना तो दोनों। अरे क्या है यार, क्या बैच है यार, डफर हो गए। जल्दी बताओ ना क्या आंसर है। सर -17/5 -23/6 आ रहा है। -23/6 and 17/5. हाँ थोड़ा सेम आंसर आ रहा है, -23/6 एंड -17/4. अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पहले क्यों गलत बोल रहे थे? हाँ भाई, इसके कारण आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है? नो सर। बिल्कुल क्लियर। यस सर। चलो जल्दी से फोर्थ पार्ट करो, हरी अप। ये रब कर सकता हूँ, एवरीवन डन? यस सर। चलो दोनों पार्ट मेरे साथ ही सोच लो। रेडी था एवरीवन? यस सर। दोनों आप मेरे साथ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फैमिली का कैसे निकालते हैं? मैंने पॉइंट टू नोट में भी लिखा है। L1 and L2 दोनों को लाइन solve को करो। सेपरेटली Solving L1 L2. यस, यहाँ पे यही चीज करनी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। दोनों को सॉल्व करके क्या आता है आंसर? -2 -2, -2,0. मतलब ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट ना? यस सर। अब ई पार्ट समझा रहा हूँ, स्टॉप राइटिंग एंड एक बार सुनो ध्यान से। डायग्राम बनाते हैं यार। ये दो लाइंस है जो -2, 0 पे पास कर रही है। रफली बना रहा हूँ, चलेगा। क्या बोल रखा है? देयर इज अ पॉइंट 2, 3। भाई मैंने पहली बात तो गलत बना दी। क्यों गलत बना दी? नहीं बोल रहे? नेगेटिव स्लोप है ना, नालायक हूँ। हाँ सर, दोनों का नेगेटिव है। -2, 0 और 2, 3 यहाँ पे कहीं पॉइंट है। ये दोनों लाइंस L1 और L2 है। 2, 3 से हमें एक मेंबर ऑफ द फैमिली बताना है जो 2, 3 से मैक्सिमम डिस्टेंस पे। ऑल द मेंबर्स हैव टू पास थ्रू दिस पॉइंट। एग्री करो? -2, 0। Yes. मैं 3-4 लाइन बनाता हूँ, तुम बताना कौन सी मैक्सिमम डिस्टेंस पे। लाइक लेट्स से 1 मेंबर बनाते हैं ऐसी लाइन।
इसको बोल देता हूँ L4, फिर एक और मेंबर बनाता हूँ लेट्स ऐसी L5, फिर ऐसी बनाता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे L6, फिर बनाता हूँ लाइक दिस L7, फिर टिल्ट कर दिया और L8 और टिल्ट कर दिया L9। ध्यान से देखना फिगर्स को और मुझे बताते जाओ कौन सी डिस्टेंस बड़ी है। क्या क्वेश्चन है? The member of the family which is at maximum distance from the point 2, 3, ये ना क्वेश्चन? Yes, sir. तो की भी बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट लेट्स से फर्स्ट टॉक अबाउट L4। तो 2, 3 की L4 से डिस्टेंस क्या हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी। Yes, sir. Yes, sir. बहुत छोटी लग रही है, एग्री करो एज कंपेयर्ड टू L5 आल्सो। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. तो L4 तो आंसर नहीं है, एग्री ना? Yes, sir. Agreed. Yes, sir. अब L5 भी नहीं एग्री करो क्योंकि L6 और ज्यादा बड़ी डिस्टेंस पे दिख रहा है। कम ऑन। हाँ, Yes. sir. Yes, sir. ऐसे तो L9 भी नहीं एग्री करो। कम ऑन। हाँ, sir. Yes, sir. ऐसे तो L8 भी नहीं है, L8 से तो ज्यादा बड़ी डिस्टेंस दिख रही है किसकी? L7 की। कम ऑन। Yes, sir. L6 L7 नीचे आएगा ना? L6 की भी बड़ी दिख रही है, बट कहना इसे मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस अभी L7 की दिख रही है। Yes, sir. Yes. कैसी है L7 की डिस्टेंस? ऑलमोस्ट कहना इसे यहाँ पे परपेंडिकुलर कहीं है। Yes, sir. अब मान लो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे -2, 0 पे परपेंडिकुलर हो सकता है ना एक लाइन। कम ऑन। Yes, हो sir. सकता है सर। Yes, sir. उस लाइन की बात करो L7 के रिस्पेक्ट में। दिस इज L7, आर यू विद मी? Yes, sir. Yes, sir. ये एंगल कितना है दिख रहा होगा? कितना है? 90 डिग्री। 90 degrees. अब सोचना इस लाइन को थोड़ा सा भी मैं ट्विस्ट कर दूं, लेट्स से L7 से L6 बना दूं, डिस्टेंस तो कम हो जाएगी, एग्री करो ऐसी हो जाएगी। हाँ, हाँ सर। Yes, sir. और ट्विस्ट करते जाऊं तो डिस्टेंस और कम होती जाएगी ना, तो मुझे नहीं करना चाहिए। एग्री हाँ करो। सर। हाँ हाँ, सर। sir. नहीं करना चाहिए. हाँ, sir. वापस L7 पे आ जाते हैं। L7 पे डिस्टेंस देख लो, 90 डिग्री के करंट मैक्सिमम पे है एक्चुअली। अगर उससे थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दो, लेट्स से L क्या है, L10 बना दिया, L10 बना दिया, भी डिस्टेंस तो कम ही हो जाएगी। एग्री करो। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. L7 पे अच्छी खासी डिस्टेंस है क्योंकि 90 डिग्री है इससे मैक्सिमम, और उसको इस पॉइंट से पास करना ही है। L7 से ट्विस्ट इधर कर दी इस पे L8 पे, तो भी डिस्टेंस कम हो जाएगी। एग्री करो। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसमें और ट्विस्ट कर दिया, दैट इज L9 बना दिया, तो डिस्टेंस और कम ही हो रही है ना। हाँ, sir. Which is the line which is the maximum distance बच्चों? L7. 7. What is special about L7? It's making 90 तो degree. perpendicular 90 degrees बनाता है। 2,3 और -2,0 पे वो 90 डिग्री है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रफ लैंग्वेज में समझाओ जल्दी से। मेरी जितनी इतनी सारी लाइन बनाना है, आप L7 बना दो, मैक्सिमम शो कर दो बस।
यस हो गया वापस का हाँ बच्चों ये लिख दिया 7 इज द लाइन तो फिर उसका स्लोप और वो सब निकल जाएगा ना स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग -2, 0 एंड कौन सा पॉइंट 2, 3 इसका स्लोप हो जाएगा 3/4 सो स्लोप ऑफ द L7 लाइन विल बी -4/3 करेक्ट बच्चा Yes, sir. Yes, sir. अब स्लोप पता है और -2, 0 से पास करा है तो लाइन आ गई कैन आई से Yes, sir. यस किसी को कोई डाउट यस लेट मी नो अगर कोई डाउट है तो सर ई पार्ट का आंसर कंफर्म कर सकते हैं बता दे कितना है सर 4x + 3y + 8 = 0 Yes, sir. Same मिला. 4x + 3y plus + 8 = 0 तो सही yes can we move everyone now Yes, sir. I hope copy हो गया है I'm changing the page अब देखो फैमिली का एक और यूसेज मतलब यही यूसेज में वापस एक चीज बता देता हूँ क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ तो देखते हैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन AD of triangle ABC where equation of AB is x plus y minus 2 = 0 AC is 3x minus y plus 4 = 0 and point D is let's say 1/2 से क्वेश्चन कॉपी करके स्क्रीन पे देखो यस सबने कॉपी कर लिया यहाँ तक डायग्राम बन गया Yes, sir. Yes, sir. ओके मेरे साथ देखो क्वेश्चन में कुछ डर नहीं है नो ये तो कोई कोई भी कर लेगा जल्दी से एग्री करो Yes, sir. Yes. मेथड 1 फैमिली ऑफ लाइन से पहले वाला मेथड क्या है दोनों को सॉल्व करके क्या निकालूंगा Point of intersection Point of vertex A. intersection. Intersection. गेट पॉइंट ए नाउ पॉइंट डी पता है Yes, sir. 2 points. करेक्ट ना Yes. Yes, sir. मैं बस इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दिस क्वेश्चन विल बी अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग क्वेश्चन जिसमें ये सब करके टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम व्हाइल वी कैन डायरेक्टली यूज फैमिली कौन बता सकता है फैमिली किस तरीके से यूज कर सकता हूँ L1 plus lambda So L1 plus lambda L2 is equal to 0. Sir, and then put dk. Okay, sir. गोपाल गलती आ रहा था मैं क्या कितनी बार समझा कि नाम बोल के बोला कर
अभी Yes, आदित्य sir. आनंद बोल रहा था तो वो मैं सुन रहा हूँ उसका, फिर मैं बोलना चाहता हूँ बट तू पहले चिल्ला देता है। कंट्रोल करना सीख, बार बार बोल रहा हूँ, नाम बोल फिर बोला कर, तेरे को आदत ये बना ले। हाँ, तो गैस आदित्य बच्चा ऑल्सो सेड, क्या ध्यान से देखो ये दोनों लाइन दे रखी है, तो ग्रीन लाइन इज पासिंग थ्रू सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बस आई एम रिपीटिंग, ग्रीन लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. So green line belongs to the family, na? Yes, sir. Yes, sir. So if it belongs to the family, it can be directly given by what? L1 plus lambda. L1 plus lambda L2. इसका फायदा ये हो रहा है कि तुम्हें पॉइंट नहीं निकालना पड़ रहा है और तुम्हें जनरल फॉर्म में 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज नहीं करना पड़ रहा है, उसके बाद जनरल फॉर्म में अरेंज भी नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्टली उसी फॉर्म में आएगा। जल्दी से एग्री करो। Yes, Come on. sir. Yes, sir. ओनली थिंग इज लैम्डा नहीं पता है, उसके लिए क्या करेंगे, किससे पास कर रहा है ये? 1/2. So 1,2. टाइम बचा दो। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्टली आपको, मैं तो रैंडम वैल्यू दी है तो हो सकता है लैम्डा की वैल्यू अच्छी नहीं आए, जब तुम्हें इस टाइप की चीज क्वेश्चन में आएगी तो वो अच्छी आ जाएगी। चलो जल्दी से कॉपी कर लो। So 7 minus 2 5. Okay, another copy. Yes, sir. Done. Everyone down? Yes, sir. डाउट है क्या बच्चों उसमें? No, sir. कॉपी नहीं हो गया तो कॉपी कर लेना, आज मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा ना नोट्स, इसलिए पूछ रहा हूँ। कॉपी हो गया है? Yes, sir. Done.
क्वेश्चन लिखो. Prove that family of lines given below passes through a fixed point. Also find those fixed point if first part फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा, सेकंड पार्ट तुम कर लेना. फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कॉपी हो गया, तो स्टॉप राइटिंग. Yes, sir. बोलो नालायक को, फर्स्ट पार्ट हो गया. Yes, sir. Yes, sir. चलो बताओ, कौन बता रहा है? गोपाल. गोपाल और कोई? गोपाल तुम्हारे पास इंटरेक्ट करता ही है, मुझे नए बच्चे भी चाहिए. एनीबॉडी? चल गोपाल बोल. No, because it's given for all values of A and B, can we take it as an identity? कर सकता है ना, वैसे करना है, करना भी वही है, करना भी वही है, पर थोड़ा और उस तरीके से सोच. करना वही है एक्चुअली, बट थिंक अबाउट इन दैट टर्म्स कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो फैमिली ऑफ लाइंस भी L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा ही होता है ना. Yes, sir. हाँ है ना बच्चों. Yes, sir. तो अगर यहाँ पे देखें, मैं सारे में ए के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर रहा हूँ, कितना हो गया लेफ्ट में बताओ, सब कुछ लेफ्ट में लाके बोलो. X plus Y. Plus 1. X plus y minus 1. Minus 1. प्लस बी का कोफिशिएंट बोलो. 2x 2 plus 2b plus 3b minus 1 2x plus 3y y minus 1. minus 1. minus 1. अच्छा, आप जल्दी से बताओ, क्या ये L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म में दिख रहा है या अभी नहीं दिख रहा है? सोचो. ये करेंगे. ऑलमोस्ट दिख रहा है. कैसे? Divide by ए से डिवाइड कर दिया, अब दिख रहा है. हाँ कौन? सर. हाँ इन बच्चों. हाँ सर. So if it represents the family of lines, all of them will pass through the point of intersection, which can be found by. बोलो जल्दी से. So L1 is equal to 0, L2 is 0. L1 equal to 0 and Equal to 0. ये सिर्फ से काम करना है. तो क्लियर है? Yes, sir. सबको क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से सॉल्व करो. Come on. 2x plus 2 and half from half. 2x plus 2 equal to 2. Equal to minus half.
सर बी पार्ट का आंसर भेजा। Yes, sir, please. चलो हो गया होगा तो सबका। हाँ सर हो गया। Yes, sir. हाँ, कितना आंसर है बोलो। सर तो 1,1 1,1 1,1 करेक्ट। हाँ भाई किसी का डाउट है तो आगे बढ़े, अदरवाइज कैन वी मूव। यस सर। Yes. ये क्वेश्चन करो तीनों पार्ट्स जल्दी से। पीएनसी की बुकलेट अटेम्प्ट कर ली। सर हो रहा है अभी। खत्म नहीं हुआ है बट हो रहा है। स्ट्रेट लाइन से कितनी कर। सर हो गया सर जो भी ऑलमोस्ट होमवर्क भेज एक्सरसाइज 3 का भी ऑलमोस्ट हो गया है जो आपने भेजा। मेजॉरिटी खत्म हो गया। सर एक्सरसाइज 3 बाकी है अभी, वो हो जाएगा। आज वापस अपने नया होमवर्क भेजूंगा ना। ओके हाँ सर। सर ऑल बुकलेट होमवर्क। हाँ 70%, 60%, 70% चैप्टर हो गया तो वापस अच्छा खासा भेजूंगा। सो डू दैट। सर आप नो वे होम देखने वाले हो? मौका मिला तो बिल्कुल देखूंगा। काफी काम है। अच्छी मूवी है ना। हाँ सर बहुत अच्छी है। बहुत हाँ अच्छी क्या है। आया बोल रहे हैं काफी सर, अच्छी है। मैंने देख के आया, बहुत अच्छी है। देखने का मौका मिल ही नहीं रहा सर। बहुत टाइम है तुम वेलो के पास है। अरे यूएनएस सर कल नहीं है, टाइम सर निकाल नहीं है, के देखा। लेकिन कल जो है क्लास नहीं था, पर सॉरी थर्सडे को क्लास नहीं थी ना, यूनिट इसीलिए। टेस्ट के बीच में तेरे पास टाइम मिल रहा है आराम से जाने का है ना। सर यूनिट टेस्ट में सर यूनिट टेस्ट के लिए सर वेट मत यूनिट करो। टेस्ट मतलब सर वो तो ऐसे ही हो जाता है। सर भगवान की कृपा से पता नहीं सर, हम लोग पास हो जाते हैं, मतलब अच्छे हाँ मार्क्स सर बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। अभी बुला था उन टीचर को यूनिट टेस्ट मतलब ना। सर मतलब ऐसे सर भगवान सर हमें अच्छा कुछ है, भी देता है सर एग्जाम के सर 2 अच्छा है मिनट आप पहले। वाला रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, अच्छा है। एग्जाम के बाद चले जाते हैं ताकि रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है और क्या। हाँ हाँ सर मतलब एग्जाम के 15 मिनट पहले सिलेबस देखते हैं, लेकिन फिर मार्क्स तो अच्छे ही आते हैं, पता नहीं कैसे। हाँ सर आ जाता है। एक बार रियलाइज कराना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ जो तक पढ़ेंगे पेरेंट्स है तब जाके पढ़ोगे फिर नहीं। वो लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं। सर जैसे आपको भी बाद में रियलाइज हुआ था कि सर ने फेल कर दिया था, हमको भी बाद में रियलाइज होगा मार्क्स आएंगे तभी। इसमें तो करना ही पड़ेगा ढंग से बोर्ड्स में। तो ठीक अभी प्रेशर फील नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट ईयर नवंबर दिसंबर में प्रेशर फील करोगे
तो बोर्ड के मैनुअल्स, बोर्ड के प्रैक्टिकल्स, बोर्ड की पढ़ाई, जेई का रिवीजन, सब ऐसे ऐसे बबू पालेगा। इसलिए जो सिलेबस में आ रही थोड़ी थोड़ी चीजें रेगुलरली पढ़ लेना कॉलेज के लिए, ताकि उस समय लोड नहीं पड़े। सर ए का आंसर 1 का -2 है। हाँ सर वही है। तीन वेरिएबल से मैं डील नहीं होगा, लैम्डा दो वेरिएबल से ही निकल सकता है, करेक्ट ना? जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में हमने ए और बी था तो ए से डिवाइड करके फिर लैम्डा लिया, तो इट्स बेटर तीन वेरिएबल की जगह दो वेरिएबल कर दो। समझ में आ गया? करो जल्दी करो। हाँ बच्चों, फर्स्ट पार्ट तो हो गया सबका। कॉन्फिडेंट वॉइस में चाहिए, यस और नो? यस सर। Yes, sir. किसी का फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। ABC are in AP, so therefore 2B is equals to A plus C. So I can say A minus 2B plus C equal to 0. तो मैं देख सकता हूँ कि AX plus BY plus C को इस कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है कि X की जगह क्या आ गया 1। देखा तुमने? ये मैं शॉर्टकट तरीका कर रहा हूँ, फिर फैमिली ऑफ लाइन वाला मेथड भी कर दूंगा। सब बच्चों को शॉर्टकट दिख रहा है कि x को 1 रख दिया गया है। यस सर। और y को कितना रख दिया है? -2 मैच कर रहा है, इसलिए क्लियर है सबको शॉर्टकट? यस सर। आंसर 1, -2 यहाँ से भी दिख रहा है। बट अगर तुम्हें सिस्टमैटिक मेथड चाहिए तो फैमिली ऑफ लाइन से भी कर सकते हो। क्या ax plus by plus c है, किसी भी वेरिएबल को हटा दो। किसको हटाऊं? c को हटाऊं, b को हटाऊं, ठीक। b is what? a plus c by 2। यहाँ से a के टर्म्स पे इकट्ठे कर लो। a कॉमन x plus y by 2 2x by 2 plus 1 equal to 0। फैमिली ऑफ लाइंस आई होप दिख रहा है, मतलब मैं ये से डिवाइड कर दूंगा, पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 equal to 0 and L2 equal to 0। L2 equal to 0 मुझे दे देगा y का कोऑर्डिनेट -2 और यहाँ से x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा x equals to -y by 2 that is x equals to 1। so therefore पॉइंट आ गया 1, -2। क्या सबको शॉर्टकट समझ में आ रहा है डायरेक्टली देख के? हाँ सर देखा। एक बार मेरे साथ लिखना, मतलब लिखना बंद करो, मेरे साथ बी पार्ट का शॉर्टकट से बता सकते हैं आंसर? हाँ सर डिवाइड बाय 6 होगा। हाँ भाई, सबसे पहले सी वाला फॉर्म सेम कर दो। ax plus by plus c equal to 0 है, जो गिवन कंडीशन है उसको किससे डिवाइड कर दूंगा ताकि c c से हो जाए 6 से। so 3a by 6 plus 2b by 6 plus c equal to 0। so बताओ किस पॉइंट से पास करा है? 1/2 1/3। Yes. फैमिली ऑफ लाइंस वाले हाँ मेथड से सर भी आता है वो क्या? लंबा हो गया।
ओके सी पार्ट नचिकेत चेक हाँ सर भेजा। गोपाल करेक्ट पेपर जाने का सही था नाम निकल गया आदित्य नॉट करेक्ट प्रीति नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट जयपुरी करेक्ट निश्चित करेक्ट कैरव करेक्ट मयिका पार्शल राधा पार्शल आगम पार्शल इसका सिर्फ रोल नंबर दिख रहा है तो मैं बोल नहीं सकता हूँ तो खत्म करें एवरीवन अब तक थोड़ी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे बहुत आता है क्या Yes. परफेक्ट स्क्वायर्स करेक्ट ना तो सारे बी के टर्म है उनको ध्यान से देखो परफेक्ट स्क्वायर दिखना चाहिए नहीं दिख रहा है तो मतलब आंखें खराब है तुम्हारी हाँ सर दिखा था मैं नहीं दिखा था 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0 अब स्क्वायर को हटा के प्लस माइनस तो रखोगे ना ऐसा तो नहीं कि सिर्फ प्लस रखोगे फिर प्रीति ये सब पार्शियल आंसर क्यों आ रहे थे राधा जल्दी बोलो क्यों आ रहे थे बच्चों सर प्लस माइनस में माइनस भूल गए। सिर्फ माइनस ले लिया क्यों ऐसे एक ही चीज क्यों ले रहे हो सर गलती से सी राइट हैंड साइड कर दिया तो नहीं कर भी देगी तो भी देखो होल स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर तो दिखेगा ना तो उसके बाद प्लस माइनस क्यों नहीं मैं प्रीति से नहीं बाकी सबसे पूछ रहा हूँ क्या मेंटालिटी होती है उस समय सर वो क्वेश्चन में सी पॉजिटिव दिया है ना तो इसलिए सिर्फ कहाँ दिया प्लस सी दिया ना इसलिए वैसा हुआ कहाँ दिया तो माइनस सी कंसीडर अच्छा यहाँ प्लस सी लिखा है इसलिए हाँ सर सो -1 से डिवाइड भी कर ओके आई होप दिख रहा है दोनों कंडीशन आ गई यहाँ पे 2a plus 3b plus c equal to 0 and 2a plus 3b minus c equal to 0 इसको इससे तो सबको दिख गया 2,3 डायरेक्टली शॉर्टकट के हिसाब से सर और यहाँ से माइनस सी को प्लस करूंगा तो आई होप दिख जाएगा -2, -3 करेक्ट ना यस सर जल्दी से कॉपी करो family of straight lines is an easy topic. Only thing is it is an awkward topic introduced for the first time. Otherwise, challenge तो आएगा तो family of circles करेंगे. Got it? यस सर Yes, sir. Can I move सबका हो गया तो? हाँ सर Yes. आगे बढ़े. Yes. ये क्वेश्चन करो. सब ऊपर वाला फर्स्ट. सब ऊपर वाला करना. सर कौन कर रहे हैं मतलब पासिंग थ्रू 1 पॉइंट ना
बच्चों ने सुना क्या Yes, पूछा sir. इसने? कॉन्करेंट मतलब क्या होता है? ऑल थ्री लाइंस Same पासिंग थ्रू point. द सेम पॉइंट। Sir, हो गया. Done, sir. चलो डिस्कस करें। हो गया? Yes, Yes, sir. sir. तो ये बचकाना क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दिया, बट इसमें एक कंडीशन बतानी है। क्या सबने दो लाइंस को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लिया और तीसरी लाइन से सॉल्व कर दिया ना? Yes, हाँ, sir. Yes, sir. sir. So all of you have done this thing only, y equal to 2x plus 1 and 2x plus y equal to 16 से कौन सा पॉइंट निकाला? क्या है? 5, 5,6. 5,6. और फिर वो तीसरी लाइन में सेटिस्फाई कर दिया y equal to ax minus 4 to get the value of a equal to 2, correct? Yes, sir. Yes, sir. So, अब देखो मेथड 2 जो मैं कंडीशन याद कराना चाहता हूँ कि डेल्टा यू रिमेम्बर किसके लिए यूज करता था मैं? Dominant. डिटरमिनेंट, बिल्कुल सही याद है डिटरमिनेंट। Yes, sir. Yes, sir. सारे कोफिशिएंट्स के डिटरमिनेंट हम लिखते हैं, एज्यूमिंग सबको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, चलेगा? Okay, sir. क्या बोल रहा हूँ मैं? सारे कोफिशिएंट्स की डिटरमिनेंट एज्यूमिंग सब किस फॉर्म में? General form. General form. एक कोई फिक्स फॉर्म या फिर लेट्स से जनरल फॉर्म। तो लेट्स से जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है? 2 1 minus 16 कहने से Yes, sir. इसकी जल्दी बोलो क्या लिख रहा हूँ? 2 1 -16. minus 16 या सबसे पहले एक ही लिख देता हूँ, अदरवाइज ये बार बार आएगा ना भाई। ए वाले को बोलो, ए बोलो -1, -4. -1 -4, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इसका ले लो 2x plus y 2 1 minus 16। तीसरे का बताओ। 1 1 minus 1 minus 1. 1. यस बोलो क्या कंडीशन होने वाली है? डेल्टा इक्वल टू 0। देखें? हाँ, याद है डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते थे? Yes, sir. फर्स्ट रो के अबाउट याद आ गया? हाँ, sir. हाँ, sir. a इनटू कितना आएगा बोलो? 1 1 into 1 minus. 1 minus 16. 1 minus 16 minus 15 with me now? Yes, sir. Yes, sir. फिर ये माइनस के आगे क्या लगता था? Minus. Minus. तो ये +1 हो जाता है और इस चीज के कारण डिटरमिनेंट कौन सी आएगी? जो ये छुपा के और ये छुपा के कितना बचा? 2 into 2 1 plus 16. 2 plus 16 18। फिर क्या आएगा लास्ट टर्म? -4. -4. -4 और उसके कारण क्या आएंगी? -2 -1. -2 -1. सही लिखा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो क्या आंसर आता है? -15 है, 18 plus 12 राइट? Yes, sir. Yes, sir. 30. 30. -30 हो गया उधर जाके। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2.
पहले तो कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे करके लिखते हैं। हो गया सर। हर चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्टेप्स डिटरमिनेंट लिखो, आंसर लिखो बस। Done everyone? Yes, sir. Current lines heading डालो। कुछ नहीं, बस एक छोटे से कंडीशन लिखूंगा, ज्यादा कुछ लिखूंगा नहीं। If the three lines are concurrent, which is the best method? Determinant वाला या manually वो दो लाइन को सॉल्व करने वाला? Determinant. Then you are wrong, वही वाला better method है। Determinant वाला सिर्फ तभी यूज करोगे जब तीनों लाइंस पे वेरिएबल्स हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, अदरवाइज जो तुमने करा वही बेस्ट मेथड है। Is that clear? Okay, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Method 1, try to solve two lines and then put in third. Can I say? Yes, sir. Find point of intersection. Put in the third line. Yes, यही best method actually. Method 2, determinant वाला भी हम कंडीशन जरूर लिख देते हैं, क्योंकि बाद में जब 3 डायमेंशन वेक्टर 3D पढ़ोगे, कैलकुलस पढ़ोगे, तो उसमें एक कंडीशन यूज आती है। तब बोलेंगे तुमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, तो बोलेंगे हाँ पढ़ा था भाई। कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। Line L1 is, let's say, a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Line L2 is also in general form. Line L3 is also in general form. Then concurrent lines की condition होती है, क्या होती है बच्चों? Equal to area equal to 0. area equal to 0 बिल्कुल बोल सकते हो, but concurrent line की condition ये है। Clear everyone? Yes, sir. ये कंडीशन ये वैसे आया कैसे होगा? ये इसी से आया, बस दो लाइन को सॉल्व करके फिर तीसरे में रखा इन जनरल सेंस में, तो फिर उसको रीअरेंज करा डिटरमिनेंट्स में, तो ऐसा आता है। चलेगा ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. दो लाइन को सॉल्व करेंगे तो ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी किसमें आएंगे? a1 b1 c1 a2 b2 c2 उसी में आएंगे एवरीवन। Yes, sir. फिर वो तीसरे में रखते हैं और उसको अरेंज करते हैं, उससे आ जाता है। कैन आई मूव एवरीवन? डन? Yes, sir. यहीं पे क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टार्ट।
सर आंसर भेजा। Okay. Correct आ रही ना? Correct, Vivan. Kara, silly mistake. Okay, silly mistake. So mistake. Nalaiko. Nishit, correct. चलो हो गया होगा -1/3, 1 करना है क्या? नहीं सर। Yes, sir. Anybody else? Yes, sir. Please. Yes, sir. Okay. डिटरमिनेट करूंगा डायरेक्टली करूंगा तुम बताओ। सर डायरेक्टली कर दो। Directly. ऑल फर्स्ट टू लाइंस क्या आता है? -1, -1, -2. ठीक ना? -2. -2 है सर। सेटिस्फाई कर सर -1,1 आ रहा है। क्या नालायक बंदे करते हैं -1,1। हाँ सही है ये। पता नहीं क्या करो कबाड़ा बोलता रहता है। Now if it is satisfying the second third line क्योंकि कॉन्करेंट है तो therefore क्या हो जाएगा -a -2b प्लस c = 0। ये रिलेशन तुम्हें यूज करना है। -a -2b प्लस c = 0। नाउ फैमिली ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं। कौन सी लाइन दे रखी है? 3ax -2by। तो आराम से c को एलिमिनेट कर दो बच्चे। Yes. c की वैल्यू क्या रख दूंगा? कितनी बता? A plus 2B. A plus 2B. a plus 2b = 0। अब a के कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर लिए 3x plus 1 then 2b के कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर लिए 1 minus y = 0। सो पता है हम सबको ये फैमिली ऑफ लाइंस है which passes through the intersection of L1 and L2। इसका y कोऑर्डिनेट 1 आ गया और x कोऑर्डिनेट कितना है? -1/3 -1/3 को 1 is the answer। आगे बढ़ो। Yes. 5 seconds copy। Done. Sir. ओके क्वेश्चन करो अपना अलग टाइप का।
ओके बच्चों, ये क्वेश्चन होमवर्क की तरह करके आना, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में ब्रेक भी चाहिए। क्लियर? ओके Yes, sir. Okay, sir. क्वेश्चन अच्छी तरह कॉपी कर लो, इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। बस होमवर्क से करके आना। नेक्स्ट क्लास आल्सो बिगनिंग में मैं वेटिंग डाल दूंगा, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए बोल रहा हूँ, वो शुरुआत में ही समझना जरूरी। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Okay, I'll give you homework. Please do it and come before the next lecture. थोड़ा करके आना ताकि प्रैक्टिस होगी। Okay, that's it for today. Bye bye. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. Thank you, sir. Recording stopped. Thank you, sir. Bye, sir. Anything else before I leave?